देखो, हम लोग सुनते थे बचपन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये जी 3 ज़रूरतें हैं। जी आज की 3 ज़रूरतें हैं ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, रेमडेसिविर। ये कब बदल गया? रोटी, कपड़ा, मकान से कब बदल गया? लोग भूल गए कि क्या जी था। आज एक बच्चा भाग रहा है सिलेंडर लेके अपनी माँ का जान बचाने के लिए, एक बीवी भाग रही है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। आई गेट गूज़बम्प्स व्हेन आई टॉक अबाउट इट। So how do you feel when they say that they want you to become the head of the state? I'm comfortable in my space. I don't know कि अगर if I was into politics or something, I wouldn't have been able to do what I'm doing. So I had to follow a few protocols, follow a few systems. कोई तरीका मुझे ढूंढना पड़ता उसको करने का. बट जब मैं अकेला जी होता मैं सोचता नहीं. मुझे बैठे बैठे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ सूझा कि यार ये मुझे करना है, तो मैं कल उसको फ्लोट कर दूंगा. मैं पूछूंगा नहीं. मैं won't sit on those policies and deciding people who are saying what's right or what's wrong. I'll just do it and I'll say I want to do it. मैं करूंगा यार. So I think that's what I've been trying to do. I'm trying to put people together. For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. सोनू सर, वंडरफुल टू मीट यू येट अगेन. आपने बोला था आई एम नॉट अ मसीहा, बट यू डू रियलाइज यू हैव बिकम the ray of hope and a messiah to everyone, and the thing is, आपका नाम लेके ही लगता है कि सब हो जाएगा, because not even once have I seen you say I'm trying, हो जाएगा, and that gives people so much of confidence around this time of anxiety. How do you do it? जब इतनी कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेथ होता है, लोगों का ट्रस्ट होता है, सो आई every day almost 3 hours on the phone speaking to people, those desperate calls, helplessness, and sometimes they must have tried everywhere, and I get every day I get message, you are our last hope, please save my mother, please my father. And I see myself in the same situation, that imagine if I had to go run from pillar to post saving the life of my loved ones, my mother, father, and how helpless I would feel. And imagine the people who are not able to reach out to us, and if they must have lost their loved ones, which we see every single day, they'll be living with that stress all their lives, that they couldn't get an oxygen cylinder for their father, or they couldn't get a bed for their mother, or they couldn't get an injection for their loved ones. So I think we are living in difficult times, and yes, when people trust me, I have to deliver. To deliver, and how? And you're also someone who says like, I don't want donation, I will do it, but people want to come and help you. How are you managing? What are your challenges? How are you doing this? If you could just tell us, because I'm sure you can hear the applause, the gratitude that every citizen of this country has for you as of now, and will always. Pooja, I was not trained to do all this. What I am, मैंने भी पहली दफा इन दवाइयों के नाम सुने थे, इन अस्पतालों की बातें सुनी थी. I never knew anyone, but now now as we talk, every hospital in this country, almost I would say, in every district, in every small kasbah in India, I have a reach. I connect with them and I try to make things happen for them. मुझे पता नहीं कैसे होता है, but I know there are some prayers of all those needy also working with me. I tell them whenever someone calls me, Sonu bhai, make this happen. So I said, just give me 15 minutes and I'll try to put things together, and it happens. So I think somewhere God is also guiding me right, or helping me, or just telling me, just Sonu, go all out. This is your job and you have to do it. And I just take it as my duty, and I've been trying to do whatever little I could do. और आजकल ना एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट, अपना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, आई ट्राई, आई एम लुकिंग. आपका नाम आता है, हो जाएगा, यू विल गेट इट. And that confidence is, everyone gets so much of hope that everybody is reaching out to you. Are there times that you get overwhelmed by this? I get sometimes, when I get at least 15 to 18 cases every 2 to 3 minutes. They're all, if I try to call some hospitals, it takes 30-40 minutes to put things together, send reports, this is happening, that's happening. I have to make those calls. My team people, more the people, how they try to do, get them connected. Now, if you see when we started this call, so someone wanted an injection, I took the guy on call. I said, now you're connected, just make sure that the medicine or the injections reach the place where it's needed.
This is a system which I never read in books, but I'm creating on my own every single day. All my friends whom I always used to call good for nothing, they used to just party, sleep, and again party. I made them my volunteer. I said, man, just you have to solve 10 cases for me. Every single day they call people, those DMs of different villages, speak to the people, make sure people reach, the ambulance reaches, the I've assigned jobs to everyone. So now, yeah, everyone is doing it, but yeah, it's a tough battle, but I think we all have to win together. और आपको कैसा लगता है जब आप पढ़ते हो कि इंडिया में ना आपका नाम प्रीफिक्स हो जाता है, इंदौर का सोनू सूद, बिहार का सोनू सूद, रांची का सोनू सूद, एनीवन हु गोज आउट देयर टू हेल्प, यू आर लाइक द मैस्कॉट, द हीरो. सो वो अटैच हो गए, लाइक अब वीव डन स्टोरीज, ये कहाँ, इट वाज रांची या इंदौर का सोनू सूद, somebody who had really gone there to help. How do you feel when you hear all this? मुझे याद आता है वो समय जब मैं आई वाज ट्राइंग टू चेंज माय नेम व्हेन आई केम टू मुंबई एंड आई सेड कि यार सोनू सूद नाम का कोई एक्टर थोड़ा हो सकता है यार, कुछ नाम चेंज करो. एंड उस समय आर्यमन ऐसे टाइप के नाम बड़े फैशन में थे. सो आई ट्राइड आल्सो कि यार इसको रख लें कि सोनू, कहते यार सोनू एक्टर थोड़ा, कोई सोनू नोन बंदा नहीं हो सकता. सो आई नाउ आई थिंक कि चलो अच्छा है, शायद रख लिया, माँ बाप ने सोच समझ के रखा होगा. Totally. And also, how do you feel when they say they want you to become the head of the state? वो तो literally, and my young kids who said we are voting for him, सबके वोट आपके साथ. नहीं, I think I'm comfortable in my space. I don't know कि अगर if I was into politics or something, I wouldn't have been able to do what I'm doing. So I had to follow a few protocols, follow a few systems. कोई तरीका मुझे ढूंढना पड़ता उसको करने का. बट जब मैं अकेला होता मैं सोचता नहीं. मुझे बैठे बैठे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ सूझा कि यार ये मुझे करना है, तो मैं कल उसको फ्लोट कर दूंगा. मैं पूछूंगा नहीं. मैं won't sit on those policies and deciding people who are saying what's right or what's wrong. I'll just do it and I'll say I want to do it. मैं करूंगा यार. So I think that's what I've been trying to do. I'm trying to put people together who I don't know how things are happening, but yeah, things are happening and we are doing some big things together. So where do you think we've actually failed when a second wave was expected and आपने पहले migrants को भेजा? Where do you feel, even you said we failed, I mean when you actually literally folded your hands and told people yes we failed but I'm doing my best, which, and everyone gathered around you, आपको ही देख के people have become inspired. Where do you feel as a citizen and as someone who's helping, or where do you think we failed? देखो, हम लोग सुनते थे बचपन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरतें हैं. जी. आज की 3 जरूरतें हैं ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, रेमडेसिविर. ये कब बदल गया? रोटी, कपड़ा, मकान से कब बदल गया? लोग भूल गए कि क्या था. आज एक बच्चा भाग रहा है सिलेंडर लेके अपनी माँ का जान बचाने के लिए. एक बीवी भाग रही है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए. आई गेट गूज़बम्स व्हेन आई टॉक अबाउट इट. इट्स सैड. लाइक आई सेड, जब हम क्लास में कभी फेल होते थे तो हमारे माँ बाप बोलते थे कि बेटा तू फेल हुआ है और मार्क्स लेके आना. टीचर्स बोलते थे और हम मेहनत करते थे और पास होते थे, मार्क्स लेके आते थे. और अगर हमें बोलते कि नहीं बेटा जितने मार्क्स आए उतना ही डिजर्व कर, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया है, तो मुझे नहीं लगता हम लोग कभी ग्रो कर पाते जिंदगी में. हम वो तब करेंगे जब हम बोलेंगे कि हम फेल हुए हैं. हम फेल हुए हैं. हम हमारी जनता के आगे फेल हुए हैं, जिनको जो चीजें चाहिए थी हम लोग दे नहीं पाए. पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वापस खड़े हो सकते हैं. हम आने वाली जनरेशंस को वो चीजें दे सकते हैं जो आज हमें नहीं मिली है. हम 1 से 2% जीडीपी का खर्च करते हैं. हमें 8 से 9% खर्चना चाहिए ताकि और हेल्थ केयर बन सके. हमें देश का अंदर ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा करना चाहिए कि लोग बोलें कि बॉस भारत के अंदर ऐसा हुआ था जब 2021 आया था, ऐसे लोग मरे थे, लेकिन उसके बाद भारत ने ये सब करके बताया. तब हमारी जीत है. वो तभी होगी जब हम अपनी गलती मानेंगे. Absolutely, sir. And also another thing about you that everyone's noticed, which I've also noticed, is वो जब भी होता है ना, to get access, you have to go through a machinery, PR machinery. आप वहाँ खड़े होते. How do you do that? देखो, मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करता. ठीक है, मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करता कि मुझे कैसे करना है. मैं सीधा फोन उठा लेता हूँ, कर देता हूँ. मुझे अचानक एक मैसेज फॉरवर्ड आता है जो आपके पास भी आता है, मैं सीधा नंबर डायल करता हूँ. हेलो, मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ. तो एकदम उनकी आवाज में चमक, सर बताइए क्या चाहिए आपको, बताइए सर. मेरे को सर बेड चाहिए, मैं ये कहिए वो कहिए. मैं भिड़ जाता हूँ. मैं हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को भी सीधा फोन लगाता हूँ. मैं उसके एडमिशन वाले डॉक्टर को भी फोन लगाता हूँ. मैं जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ उसको भी फोन लगाता हूँ. और मैं एमडी और मालिक को भी फोन लगाता हूँ, सीईओ को भी फोन लगाता हूँ. मैं सबको लगाता हूँ, क्योंकि सीईओ का काम है, वो बोलेगा कि बॉस यार देखना है सोनू के लिए हॉस्पिटल बेड कर दो. पर बेड किसने करवाना है? जो उसके एडमिशंस कर रहे हैं.
वो उसके हाथ में, वो कहेगा सर अवेलेबल नहीं है, पर अगर वो दूसरे के लिए चाहेगा उसके लिए बेड कर देगा। तो मैं रात रात को 2:30-3 बजे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करता हूँ कि बॉस क्या हुआ यार बेड का, सर हम लोग कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। तो मुझे शायद थोड़ा सा एज मिल जाता है। मैं किसी मुझे पता है कि बहुत जो कहीं नहीं पहुंच सकता वो मेरे तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो मैं उसके लिए मुझे खड़े होना है। आई हैव मेक श्योर दैट आई try to fulfill what the individual is expecting from me, and that's what I try to do. So can you tell us what more is the foundation doing? I know you don't like to publicize your work. You like to do things quietly, but to people to know how they can help you volunteer, in what way can they come and join forces? Because I also sometimes feel that I'm not doing enough. वो कभी-कभी वो रहता है कि आपको देखते कि मैं इतना कर रही हूँ, मैं इसका 0.1% भी कर रही हूँ, I feel I'm not. So what would you like to tell people like me also? How can we help? You know, when the whole thing started, I never had a foundation. मैं खुद ही करते रहता था, अपने लेवल पे करता रहता था। सब मुझे बोला कि I think it's very important for a long term to have a foundation जो generations तक चलती रहे, जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये लेगेसी आगे तक जानी चाहिए। So that's why I opened this Sood Charity Foundation. मुझसे लोग पूछते हैं कि फाउंडेशन सक्सेसफुल होने का तरीका ये है कि आप एक दायरा चुनिए कि भैया मैं लिवर ट्रांसप्लांट कराता हूँ, मैं तो सिर्फ एजुकेशन में फोकस करता हूँ, मैं तो सिर्फ किडनी कराता हूँ, मैं तो ब्रेन ट्यूमर कराता हूँ, मैं तो और कुछ करवाता ही नहीं। मोस्टली जितनी हम फाउंडेशन देखते हैं यही सब करती हैं, they choose that particular field and they do that only. So most of those experienced people, क्या सोनू आप बहुत ज्यादा फैले हुए हो, आप एजुकेशन भी कराते हो, आप लिवर भी कराते हो, आप किडनी भी कराते हो, अब ये भी कर। मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ, आप तक लोग पहुंचते नहीं, लेकिन मेरे तक हर आदमी पहुंचता है। मेरे गेट पे देखेंगे तो 20 लोग खड़े होंगे, मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि किडनी वाला है कि भैया मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, मैं बोलूंगा नहीं यार मैं तो एजुकेशन देखता हूँ, तू चले जा, मुझे उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। तो मेरे दायरे मैंने बढ़ा लिए हैं, और उन दायरों को पूरा करने के लिए मुझे बड़ा होना ही पड़ेगा, और बड़ा मैं अकेले नहीं हो सकता, मुझे देश के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। देश जुड़ रहा है मेरे साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फाउंडेशन का हिस्सा बनना है, और मैं उनको बोलता हूँ प्लीज कम ज्वाइन, डू वॉट एवर यू वांट। हमारी फाउंडेशन ये नहीं बोलती कि आप हमें कुछ डोनेशन दीजिए और हम करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि हम आप क्या कर सकते हैं, आप हमें प्रॉब्लम बताइए कि कहाँ कर सकते हैं। वो भी एक जुड़ने का तरीका है। अगर आप उस लाइक सक्षम नहीं है, यू आर नॉट केपेबल टू डोनेट एनीथिंग, at least you can tell boss, there's a guy who's suffering from so and so thing, we want that help. So if we are able to help them, I think you have contributed to the foundation, that what foundation needs. I think that's what we want from you. And so also with celebrities like you being an actor, lent yourself out there, नहीं बात की, अपना कोई PR नहीं किया. We all got to know when you started with the migrants. A lot of your colleagues did feel pressurized. अब सब आ गए हैं करने के लिए. आपको लगता है कुछ ज्यादा pressure होता है to prove, and then they do showcase, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. What do you make of that? वो सब कभी-कभी कहते हैं ना, दान वो कि चुपचाप किया जाए. पर मैं कहता हूँ चलो आप बोल के भी करें, एटलीस्ट लोगों की हेल्प हो गई। अगर कुछ लोग उठ के आए तो उसी में कुछ लोगों का भला हो गया, कुछ लोगों की और फर्क नहीं पड़ता जब तक हेल्प आप करते रहे। बट यस, ये सीमित नहीं हो सकता, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि मैंने चेक मैं काट देता हूँ, अच्छी बात है, वो भी अच्छी जगह पर ही जाता है। पर जो आपकी पावर है, जो आपका एक्सेस है, उसका फायदा आपने नहीं उठाया। आपने बोलते हैं कि आप एक गाड़ी में सवार हुए जिसका ड्राइवर कोई और था, और वो फिर ड्राइवर अच्छी गाड़ी चलाता है या बुरी गाड़ी चलाता है, आपको मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन आप उस पर निर्भर हो गए। मुझे लगता है ये समय वो है जब हर एक को ड्राइवर बनना जरूरी है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं 10 लोगों को जानता हूं, बताओ मैं क्या करूं। आपको अपने लोग जो जुड़े हुए, आपका स्टाफ हो, आपके दोस्त हो, आपके सबको आपको काम पे लगाना पड़ेगा, तब आप बनेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हम फाउंडेशन का हिस्सा दें। मैं क्या 24 घंटे दे सकते हो मुझे? तो सर 24 घंटे कैसे? तो मैं बोला कि बॉस मैं रात को भी फोन करूंगा 3 बजे कि बॉस ये वहाँ पे बंदा ढूंढ रहा है, बरेली के अंदर एम्बुलेंस चाहिए, आपको फॉलो करके वहाँ पे ढूंढना है, कर पाओगे आप? बहुत सारे लोग, सर मैं तो 2 घंटे दे सकता हूँ। मैंने बोला कि अगर मैंने आपको एक केस दिया, पूजा फॉर एग्जाम्पल आप मेरे जुड़े, आप बोले मैं 2 घंटे दूंगी, मैंने आपको केस दिया और 2 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ, और उस केस की कॉल 4 घंटे बाद आई, तो अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो उस बंदे की जान चले जाएगी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट, इफ दिस ये फील्ड है, इसके कोई रूल्स नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। So you have to just come out, and at least now during these tough times you have to be there for everyone who needs you. So what is the biggest challenge you're facing personally as someone who's working so relentlessly, does not say no to anyone, is doing it, but I'm sure you face your challenges, and what do you think is the need of the hour? I know how to take up challenges. मैं challenges से डरता नहीं हूँ, and I achieve my goals. I feel helpless when I lose a patient I have been trying for many days. मैंने 20-25 दिन लोगों को
एयरलिफ्ट करवाया दूसरे बड़े सिटीज़ में, उनकी एक्मो की बड़ी ट्रीटमेंट्स कराई जो बड़े बड़े लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मैंने गरीब लोग एयर एम्बुलेंस से एक सिटी से, जिनको मैं कभी मिला नहीं हूँ आज तक, मैंने बात भी नहीं की उन फैमिली से, पर एक जुनून रहता है कि मुझे बचाना है, शायद वो मेरे पास आया कोई कारण है उसके कारण। सो वो जब मैं नहीं उन्हें बचा पाता तो आई फील हेल्पलेस। वो उसको ओवरकम करना मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मैं कैसे आऊँ, छोड़ दूँ। मेरे लिए अगर कोई बंदा किसी को बोलता है कि 1% भी चांस है, मैं कब भिड़ जाओ यार, करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दिस भारतीय गर्ल जिसके बारे में बड़ी बात हुई थी। मेरे डॉक्टर्स ने बोला कि सर 15 से 20% चांसेस हैं बचने के सर, आप उसको एयर एम्बुलेंस से नागपुर से हैदराबाद लेके आएंगे, स्टिल यू वांट टू डू इट। वी फील कि नहीं पॉसिबल है तो क्या, मैंने बोला कि 15-20% चांसेस सर, लेट्स डू इट, कोशिश करेंगे। ज़िंदगी में ये तो नहीं रहेगा कि हम लोग नहीं कर पाए। एयर एम्बुलेंस मैं आज बताता हूँ 17-18 लाख रुपए लगते हैं एक फ्लाइट से एम्बुलेंस उसको लेके जाने के लिए। आई स्पोक टू दोस पीपल, मैं क्या यार गरीब लड़की है, आई एम ट्राइंग टू हेल्प, आप बताओ जुड़ोगे साथ में? सर हम लोग जुड़ेंगे सर, हम लोग करेंगे। उन्होंने दे iCAT करके कंपनी है बैंगलोर से, दे टुक जस्ट 4.5 lakhs फॉर मी, सेड हम लोग सर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमने उसको फ्लाई किया वहां पे 20 दिन 25 दिन। वो लोग लड़की जहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए रोज का खर्चा होता है एक्मो का, अपोलो हॉस्पिटल में रुकी, वी कुडंट सेव हर। बट उस चेन के अंदर जितने लोग जुड़े मेरे साथ, एवरीवन सेड दिस इज आवर केस, यू वांट टू डू इट। मैं उनको कभी जानता लेकिन मिला नहीं था, बट आई थिंक दैट्स व्हाई जो उनको इंस्पायर कर पाए, that's going to stay with them forever. So I think that's what I want. Every single individual in this country should get inspired and do something for someone. क्योंकि आज अगर आप नहीं कर पाए तो आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम की ये वो समय है जब सब लोगों के एग्जाम की टिकट बांटी गई। ये आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, हर किसी का एग्जाम है। इसमें आप दो ही तरीके हैं, या तो आप उसमें अपेयर ही मत होइए, निकल जाइए चुपचाप, या फिर आप उसमें फेल हो गए अगर आप उसमें बैठे हो। इस समय पास होने का समय है, मदद करने का समय। सो आई थिंक एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड एंड डू इट। Thank you so much. More power to you, and you are leading the way. And I'm sure many people can't come across, but you know every home is cheering you and praying for you, what you're doing. So more power to you, Sonu sir. Honestly. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you किसी so ने much, ये एक सवाल पूछा, if you become the head of the nation, पहली चीज क्या करोगे आप? Since everyone's rooting for you. नहीं पता नहीं, मैं आई डोंट नो, बट आई थिंक मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पूरा चाहता हूँ देश का बदल जाए। आई वांट दिस कंट्री शुड हैव द बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम एवर। और कैसे होगा पता नहीं, बट दैट्स व्हाट माय एम इज। कैसे होगा, अगर आप you're leading the way, हो जाएगा सर। Well, anyway, thank you so much. You really are the ray of hope. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.